Hello children, welcome to your EVS video class. Children, now you know that we are revising the chapters and we are revising it for your final evaluation. And in the series I have revised chapter 13, 14 and 15 for you. Now I have started a revision of chapter 16, that is our celestial neighbors. This chapter I had started in my previous video. इसका introduction and one section I have completed in the previous video. In today's video also we will continue with this chapter only. I will explain you the chapter and then we'll discuss certain things from the chapter. Children, before starting the new part of this chapter, we'll revise what we studied in the previous video. Children, this chapter is about celestial bodies. Celestial bodies means the objects that we see in the sky, heavenly objects you can say, the things that we see in the sky. Now, the things that we see in the sky, that we find in the sky does not mean that the birds that are flying or the kites that are flying or the aeroplane, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. The objects that are permanently there in the sky, हम उनकी बात कर रहे हैं जो permanently आसमान में हैं, sky में हैं, like sun, moon, stars. Not even planets. Planets के बारे में भी हम अभी बात नहीं करेंगे. जो चीजें हम देख पा रहे हैं हम अभी उन्हीं की बात करेंगे. We see sun, we see stars, we see moon. ये चीजें हम देखते हैं आसमान में. कुछ चीजों को हम दिन में देख पाते हैं, कुछ चीजों को हम नाइट में देखते हैं when the sky is dark. But that does not mean कि वो चीजें दिन में होती नहीं है sky में. They are very much there in the sky during day also, but we cannot see or we could not see because of the bright light of the sun. Sunlight की वजह से हम उन चीजों को दिन में देख नहीं पाते हैं, but they are very much there in the sky during day also. पर जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, we can see that. Children, हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था एक बहुत important celestial object, celestial body के बारे में, and that is sun. Sun को हमने डिस्कस किया था because हमारे सोलर सिस्टम में sun is the biggest object. Sun is the biggest object of our solar system. It is the head of the, you can say, family, solar family. Sun is the only object in solar system which has its own heat and light. Sun एक ऐसा object है solar system का जिसके पास खुद की heat और light है. बाकी solar system में किसी के पास भी अपनी खुद की ना heat है और ना ही अपना light है. सब sun से ही लेते हैं. Sun क्या है? तो sun है एक big ball of fire. It is like a huge ball of fire, glowing gases. Sun का कोई hard surface नहीं है. It's glowing gases. It's a ball of glowing gases and it is very huge. इतना बड़ा है sun कि अगर हम sun ऐसा imagine करें, which is definitely not possible, पर हम अगर imagine करें कि sun को अगर के अंदर अगर हमें खूब सारे earth fit करने हैं तो millions and millions of earth can fit inside one sun. एक sun में कई millions earth जो है वो fit हो सकते हैं. earth से वो इतना बड़ा है. आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर सन फुटबॉल है तो अर्थ जो है वो उसके सामने एक मस्टर्ड सीड है. तो आप सोच सकते हो कि फुटबॉल के अंदर कितने सारे मस्टर्ड सीड हम भर सकते हैं. तो इट इज द सेम, कंपैरिजन इज द सेम. सन जो है वो हमारे अर्थ का इट्स द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अर्थ. अब हम सोचेंगे लाइट तो हमको बल्ब से भी मिलता है, बट दैट इज नॉट द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. हमें सन से ही जो मेन हीट है और लाइट है अर्थ की वो मिलती है. मतलब अगर सन नहीं होता तो पूरा अर्थ बिल्कुल डार्क होता, लाइक ए डार्क रूम. सन के बिना पूरा अर्थ एक डार्क रूम की तरह होता और जैसे एक अंधेरे कमरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता और हम किसी सामान से टकराते फिरते हैं तो हमारा कंडीशन बिल्कुल वही होता. लेकिन सन जो है एक और हमें चीज देखनी कि सन हीट भी देता है. तो सन का अगर हीट नहीं होता तब क्या होता? हीट मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो, अगर सन नहीं होता तो अर्थ का
टेम्परेचर कैसा होता, अर्थ वुड बी फ्रोजन बॉल, एक बर्फ का गोला जैसा होता, इतना ठंडा होता कि इस पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट सन। अगर सनलाइट नहीं होती अर्थ पर तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होता। सो इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर सन नहीं है, सन की लाइट नहीं है, सन का हीट नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ होती ही नहीं। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ अगर सन नहीं होता। तो सन जो है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है। ऐसा मैंने पूरा समझाया था आपको कि किस तरह से प्लांट्स के लिए सन का लाइट चाहिए। प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं सनलाइट में, दे प्रिपेयर देयर फूड। ऑल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्रॉप्स को सनलाइट की ज़रूरत है। तो अगर प्लांट्स नहीं होते तो हम क्या खाते या एनिमल्स क्या खाते, तो वैसे भी लाइफ नहीं होती। अर्थ नहीं होता, सन का लाइट नहीं होता तो हीट नहीं होने की वजह से, सन की हीट नहीं होने की वजह से अर्थ एकदम ठंडा रहता, इतना फ्रीज हो गया होता कि लाइफ नहीं होती, एकदम डार्क रहता। तो हम ये मतलब अगर सनलाइट नहीं है मतलब अर्थ की लाइट, अर्थ पे लाइफ ही नहीं है। जो सन की एनर्जी है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और आज अभी एरा में सोलर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सब नॉन रिन्यूएबल है। मतलब एक बार खत्म हो जाएंगे तो वो दोबारा उनको जनरेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो बाकी सोर्सेज हैं एनर्जी के, दे आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब वो खत्म होने के बाद वो दोबारा से वो नहीं होंगे, या इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू जनरेट देम, टू रिन्यू देम। तो ऐसी कंडीशन में जो सनलाइट है, जो सन की एनर्जी है, वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि रोज सन निकल रहा है, रोज हमें उसकी एनर्जी मिल रही है, तो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये रोज रोज सन निकलता है, रोज रोज हमें उसकी लाइट मिल रही है, और हम ऐसा ये है कि ये खत्म नहीं होगा। जब कभी खत्म होगा, कभी करोड़ों मिलियंस, दैट इज नॉट देयर, बट अभी रिसेंटली में इट विल नेवर बी ओवर। सो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से आज अभी जो है सोलर लाइट्स चलती हैं, जो आप स्ट्रीट लैंप्स देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, अभी तो छोटे शहरों में भी यूज हो गया है। जो मेट्रो सिटीज हैं या बाकी सिटीज हैं, वहां पर जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं उसमें सोलर एनर्जी यूज होता है, सोलर कुकर्स यूज होते हैं। किसी किसी कंट्री में सोलर व्हीकल्स, सोलर कार्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, सोलर कैलकुलेटर्स होते हैं, सोलर रिस्ट वॉच होती हैं। तो सोलर एनर्जी इज वेरी मच इन यूज नाउअडेज। सन जो है वो एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो अर्थ के सबसे नजदीक है, बट दैट डज नॉट मीन दैट सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार। ऐसा हम नहीं मान सकते। सन इज अ स्टार, दैट आई हैव टोल्ड यू, सन एक स्टार है, बट इट इज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। देर आर मेनी मोर स्टार्स विच आर ब्राइटर देन सन, बट सन हमारे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, अर्थ के सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार क्लोज टू अर्थ। अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार सन है, नियरेस्ट स्टार इज सन, एंड दैट इज व्हाई इट इज ब्राइटेस्ट फॉर अर्थ। अर्थ के लिए ब्राइटेस्ट स्टार है क्योंकि ये सबसे क्लोज है, अर्थ के सबसे क्लोज वाला स्टार है ये। दिस स्टार इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। ओके, नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मून। आज हम मून के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मून क्या है? मून इज सेलेस्टियल बॉडी। आसमान में ये भी है, हमें रात में ये दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। मून इज नॉट अ प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट नहीं है। मून इज अ सैटेलाइट। मून एक सैटेलाइट है। इट इज अ natural satellite of Moon is a natural satellite of Earth. ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। Now what is satellite?
सैटेलाइट किसको बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट्स, द बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. जो ऑब्जेक्ट्स, जो हेवनली बॉडीज या जो भी चीजें प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं. ठीक है. सैटेलाइट कैन बी नेचुरल, सैटेलाइट कैन बी आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं? जो मैन मेड सैटेलाइट्स, जो साइंटिस्ट जो आसमान में भेजते हैं और वो अर्थ के चक्कर काटते हैं, दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. लेकिन मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है. इट मूव्स अराउंड अर्थ. द मून मूव्स अराउंड आवर प्लैनेट अर्थ. जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं अर्थ, इसके वो चक्कर काटता है. जैसे कि अर्थ सन के चक्कर काटता है. ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, दैट आई हैव टोल्ड यू. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं. दे मूव, दे रिवॉल्व अराउंड सन. सिमिलरली द मून मूव्स अराउंड अर्थ. जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वैसे ही मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है. इसीलिए मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. लेकिन मून का अपना कोई लाइट नहीं है. मून इज एज डार्क एज अर्थ. जैसे अर्थ डार्क है, अर्थ का कोई लाइट नहीं है, कोई हीट नहीं है, वैसे ही मून का भी कोई लाइट और कोई हीट नहीं है. फिर आप सोचोगे कि ये तो वाइट वाइट चमकता है आसमान में. तो वो क्यों चमकता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. लाइक अदर प्लैनेट्स, मून ऑल्सो रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन. मून पे भी जो लाइट है वो सन की वजह से है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. Does not have its own heat and light. मून का अपना कोई हीट और लाइट नहीं है. And it is the closest neighbor of अर्थ. ये हमारे अर्थ के सबसे नजदीक है. अगर आसमान में जितनी भी जो चीजें हैं, सन है, स्टार्स हैं और बाकी जो चीजें हैं, उनके कंपैरिजन में, प्लैनेट्स वगैरह जो है, उन सब के कंपैरिजन में मून जो है वो अर्थ का सबसे नजदीक है. इट इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ अर्थ. मून इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ अर्थ. अच्छा, इट इज राउंड इन शेप. जैसे कि अर्थ का शेप है, वैसे ही मून का भी शेप है. इट इज राउंड इन शेप. इसका शेप भी हम देख लेते हैं. It is round in shape and it is very much smaller than sun. ये sun से बहुत छोटा है. It is very smaller than sun. It is very, yeah, it is smaller लिख देते हैं. very much smaller मतलब smaller मतलब काफी छोटा है. It is smaller than sun. अर्थ ऑल्सो. अर्थ से भी छोटा है और सन से भी छोटा है. इट इज स्मॉलर देन सन एज वेल एज अर्थ. फिर आप सोचोगे कि फिर आसमान में जब हम देखते हैं तो सन और मून ऑलमोस्ट दोनों का साइज तो सेम ही लगता है. जितना बड़ा हमें सन दिखता है उतना बड़ा हमें मून दिखता है. कभी कभी तो मून ज्यादा बड़ा दिखता है, सिर्फ थाली जैसा बड़ा सा दिखता है ना, गोल सा. स्पेशली ऑन फुल मून डे येलो कलर का बड़ा सा दिखता है. तो अगर ये सन से छोटा है और अर्थ से भी छोटा है, पर ये दिखता तो सन के बराबर है और कभी कभी सन से भी बड़ा दिखता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इट इज क्लोजर टू अर्थ. सन जो है वो अर्थ से दूर है,
बहुत दूर है और मून जो है वो अर्थ के पास है। ठीक है, मतलब दोनों चीजें का जो डिस्टेंस है अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ से डिस्टेंस अगर देखें तो अर्थ से सन ज्यादा दूर है और मून ज्यादा पास है। अगर हम ये मान लें कि ये हमारा अर्थ है, इसको अर्थ मान लें, तो सन अगर यहाँ पर सन है तो मून समझ लीजिए कि यहाँ पर है। तो क्योंकि कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें ज्यादा बड़ी दिखती है, कोई चीज अगर पास होगी तो आप बड़ी दिखेगी। जैसे आप अगर कभी देखोगे कोई ट्री को देखोगे, अगर दूर कोई पेड़ है तो आपको छोटा सा दिखेगा, है ना, और आपके पास जो पेड़ है वो आपको बड़ा दिखेगा। होता है ऐसा कि दूर की चीज हमें छोटी दिखती है, पास की चीज हमें बड़ी दिखती है। हो सकता है कि वो जो दूर वाली चीज हो वो बहुत बड़ी हो, पर क्योंकि वो दूर है इसलिए हमें छोटी दिख रही है। मैंने 2 ट्री का ही एग्जाम्पल दिया ना आपको कि आपके पास जो ट्री हो सकता है वो छोटा सा पेड़ है और जो दूर वाला पेड़ है वो बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन वो आप जब दूर से देखोगे तो आपको बहुत छोटा सा वो पेड़ दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दूर है। तो क्योंकि सन दूर है इसलिए वो हमें छोटा दिखता है और मून पास है वो हमें बड़ा दिखता है। दोनों का शेप हमको सेम दिखने लगता है, मून और सन का शेप हमको सेम दिखता है, बट वो दोनों सेम शेप के नहीं है। मून बहुत ज्यादा छोटा है सन से, वो अर्थ से भी छोटा है। मून इज स्मॉलर देन अर्थ ऑल्सो। अब सन के सामने जब अर्थ इतना छोटा सा है तो मून सोचिए कितना छोटा होगा, और भी ज्यादा छोटा होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉलर देन सन एंड अर्थ, बट इट लुक्स लाइक एज बिग एज सन। It looks like as big as sun because it is closer to earth. अर्थ के पास होने की वजह से ये हमें सन के बराबर दिखता है, साइज में ये सन के बराबर दिखता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अर्थ का सिर्फ इकलौता अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके एक से ज्यादा मून है। हमारा अर्थ है जिसके पास एक ही मून है, लेकिन और कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बहुत सारे मून्स हैं। और सैटेलाइट का मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है। मैंने आपको बताया ना कि सैटेलाइट्स मूव अराउंड प्लैनेट एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। तो ये पॉइंट भी मैं लिख ही देती हूँ वैसे। सैटेलाइट का बता दूं, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द planets just as the planets move around the sun. Okay, satellite moves around the planets as planets move around the sun. Next is, as I have told you that moon does not have its own heat or light. moon का अपना कोई heat और light नहीं है, जैसे कि अर्थ का नहीं है, वैसे ही मून का भी अपना कोई हीट और लाइट नहीं है। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन। द मून रिसीव्स द मून receives light from the sun. Now one question कि मून ऐसा तो है नहीं कि रात में निकलता है और दिन में कहीं छुप जाता है।
वो दिन में भी आसमान में ही रहता है और रात में भी वहीं रहता है. इट मूव्स अराउंड अर्थ ऑफ कोर्स, बट इट इज देयर इन द स्काई इन ड्यूरिंग डे ऑल्सो. पर डे के टाइम में हमें दिखता नहीं है. क्यों? क्योंकि सनलाइट होती है. तो रात में ये कैसे दिखने लगता है? हाउ डू वी सी इट एट नाइट? हम बोलते हैं कि डार्क होता है तो वो दिखता है. तो मून की लाइट, मून पर सन की लाइट तो मॉर्निंग में भी है, दिन के समय भी सन की लाइट मून पे पड़ रही होती है, रात में भी सन की लाइट मून पे पड़ रही होती है. ठीक है, लेकिन दिखता ये हमें सिर्फ ये रात में दिखता है. इसलिए क्योंकि अर्थ के जिस पार्ट में डार्कनेस होती है, अर्थ के जिस पार्ट में नाइट होता है, उसी पार्ट में हमें मून दिखता है. और ऐसा मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर सारी जगह एक साथ रात नहीं होती है और सारे जगह एक साथ दिन नहीं होता है. पूरे अर्थ पर जो है मतलब जो नाइट का टाइम है वो सेम नहीं है और डे का टाइम सेम नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में जब रात है तो सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उस वक्त रात होगी, या इंडिया में जब डे है तो पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे डे होगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, सन के चक्कर लगाता है, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, अपनी जगह पे भी घूमता है. तो जब वो घूमता है तो सन के सामने जो पार्ट सन के सामने आता जाता है वहां डे होता रहता है, और जो पार्ट सन के सामने से हटते जाता है वहां रात होती रहती है. तो जहां डार्कनेस है, जहां रात होता है वहां वो मून दिखता है, क्योंकि सन की लाइट वहां नहीं होती है, अर्थ पे नहीं होती है. उस टाइम पे सन की लाइट नहीं होती. अब जैसे कमरे में अगर आप टॉर्च जला के रख दो, ठीक है, दिन के समय में कमरे के किसी कोने में टॉर्च जला के रख दो, आपको पता नहीं चलेगा ना कि टॉर्च कहाँ जल रहा है, क्योंकि ब्राइटनेस है. लेकिन रात के टाइम आप कमरे के सारे बल्ब्स ऑफ कर दो, सारे बल्ब्स बंद कर दो, और फिर देखो आपको पता चल जाएगा ना कि टॉर्च कहाँ जली हुई रखी है, किसी कॉर्नर में वो शाइन करेगा, है ना. ऐसा ही मून के लिए भी है. मून के ऊपर सन की लाइट है पर वो हमें दिन में नहीं दिख रही क्योंकि बाकी ब्राइटनेस है. जैसे ही रात होती है, जैसे ही हमें अर्थ को सन का लाइट मिलना बंद होता है, जिस पार्ट में अर्थ के जिस पार्ट में सन का लाइट नहीं हो रहा होता है, नहीं मिल रहा होता है, वहां मून दिखने लगता है. ठीक है, तो अर्थ जब रोटेट हो रहा है तो जैसे जैसे सन के सामने आता है वहां दिन होता जाता है, जैसे जैसे सन के सामने से हटता रहता है वहां डार्कनेस आती रहती है, रात होती रहती है, और मून वहां पर दिखता रहता है. ठीक है, तो मून दिन में भी है और रात में भी है, दिखता हमें रात में है. अच्छा, नेक्स्ट इज मून के जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ रही होती है वही पार्ट हमें दिखता है. ये भी है, मून के जिस पार्ट पर सन की लाइट है वो पार्ट हमें दिखाई देता है. मून के भी मामले में वही चीज है, मून भी तो अर्थ के चक्कर लगा रहा है. मून इज रोटेटिंग अराउंड अर्थ एंड रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस ऑल्सो. तो जब मून घूम रहा है, मून जब घूम रहा है, अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो जिस पार्ट पर, मून के जिस पार्ट पर सन का लाइट आ रहा है, बस हमें भी मून का वही पार्ट दिख रहा है. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मून का जो पार्ट सन के सामने आता है, मून का जो पार्ट सन के सामने आ रहा है रोटेट करते समय, रिवॉल्व करते समय, वही पार्ट हमें दिखता है. दूसरा पार्ट हमें नहीं दिखता क्योंकि वहां पे सन की लाइट नहीं आ रही है. मून इज रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस एज वेल एज अराउंड द अर्थ. दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का पीरियड मून का सेम होता है. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं आपको. मून अपने एक्सिस पर भी 27 डेज, अप्रोक्सीमेटली 27 डेज में अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, और उतने ही टाइम में वो अर्थ के भी चक्कर लगाता है. ओके, मैं ये लिख देती हूँ तो कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. मून टेक्स 1/3, मतलब 27 days and approximately 27 days and 8 hours approximately. 27 and 1/3 days to rotate on its
axis and to complete revolution around the earth. अब इसको जरा ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को बड़ा थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। जैसे कि अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस एंड अराउंड द सन. In the same way, moon rotates on its axis and around earth. Okay? Now, earth takes 24 hours to rotate on its axis and 365 days to move around sun. अर्थ को अपनी जगह पे एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं और सन का पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। दोनों अलग अलग हैं। 24 आवर्स अपनी जगह पे घूमने में और 365 डेज सन के चक्कर लगाने में। लेकिन मून के मामले में ये बिल्कुल अलग है। मून को अपनी जगह पर भी घूमने में 1/3 डेज लगते हैं और अर्थ के चक्कर लगाने में भी 1/3 डेज लगते हैं। मतलब दोनों ही सेम टाइम है। अपनी जगह पे भी 1/3 डेज में और अर्थ के चक्कर लगाने में भी 1/3 डेज। तो इससे क्या होता है, मून का एक ही पार्ट हमेशा देख पाते हैं और जिस पार्ट पर सन का लाइट पड़ रहा है बस वही पार्ट देख पाते हैं। मून के जिस पार्ट पर सन का लाइट आ रहा है, मून का जो पार्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है बस वही पार्ट देख पाते हैं, दूसरा पार्ट हम नहीं देख पाते क्योंकि वहां डार्क है। ओके, आपको समझ में आया ये बात? मून के जिस पार्ट पर लाइट आ रही है सन की बस वही पार्ट हम अर्थ से देख पाते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो हम नहीं देख पाते हैं। जो मून है उसके ऊपर, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, देन आई विल राइट रेस्ट। Part that receives sunlight, the part that receives sunlight is the part that we see from Earth. The part that we see from the Earth. ये समझ में? द पार्ट दैट रिसीव्स सनलाइट, जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ती है वही पार्ट हम अर्थ से देख पाते हैं। बट द मून हैज नो लाइफ। द मून हैज नो लाइफ। वहां पे कोई लाइफ नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। द मून हैज नो लाइट, देयर इज नो विंड, नो वेदर, कुछ नहीं वहां पर। There is no wind, no weather, ना वहां हवा है ना वहां कोई मौसम है। ठीक है, वाटर ऐसा बोला जाता है, इट वॉज डिस्कवर्ड सम वाटर 2009 में एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर थोड़ा सा वाटर के ट्रेसेस पाए थे, बट अभी वहां पे पानी नहीं है। They found some traces of water. They discovered water on moon in 2009. But वैसे मून पर लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, वेदर नहीं है और वहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है। ग्रेविटी क्या होती है वो आप जब सीनियर क्लास में जाओगे तब आप उसको डिटेल में समझोगे। ग्रेविटी क्या होती है, वो हमें एक मैग्नेट की तरह होती है। जैसे आप अर्थ पे खड़े हो, हमने ऊपर अगर मैं पेन फेंकूंगी तो वो नीचे ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अर्थ उसको खींचता है, अर्थ जो है उसको पुल करता है। तो मून पर ये चीज बहुत कम है।
मून पर ये ग्रेविटी बहुत कम है। आप अगर पेन को फेंकोगे तो वो हवा में ऐसे ऐसे फ्लोट करता रह जाएगा। इट विल नॉट कम ऑन द ग्राउंड। वहाँ पर जो है हमारा जो वेट है वो वहाँ पे बहुत कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हम अर्थ तो हमें पुल करके रखता है, तो हमारा जो वेट है, प्रेजेंट वेट है, उसका 1/6 वहाँ पर होगा। हमारे वेट के अगर हम 6 इक्वल पार्ट्स करें तो वहाँ पर हमारा वेट जो होगा 1/6 होगा। ठीक है, किसी बच्चे का अगर 24 kg वेट है, मान लीजिए किसी बच्चे का वेट 24 kg है, तो उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 6 4 24 है ना, 6 5 30, तो 6 4 24, मतलब वहां पर आपका 4 kg के अप्रोक्सीमेटली 4 kg वेट होगा। गॉट इट? तो वहां पर ग्रेविटी भी कम है और लाइफ भी नहीं है। तो ये जो ग्रेविटी वाली चीज है वो तो आपके बहुत जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। बस आप ये समझिए कि मून पर आप जाएंगे तो जैसे हम अर्थ पे खड़े हो पा रहे हैं वैसे खड़े नहीं हो सकते। वहां पे एक स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है, ऑक्सीजन मास्क लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है कि सांस लिया जा सके। वहां पर जो है, जो सबसे फर्स्ट पर्सन जो मून पे गए थे उनका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप अप ऑन द मून, जो मून पर पहली बार गए थे। तो वो ऐसे ही थोड़ी ना चले गए थे, उन्होंने स्पेस सूट पहना था, उन्होंने ऑक्सीजन का पूरा लेके गए थे, पूरा उसके जो कहते हैं ना पूरी व्यवस्था के साथ गए थे, ऐसे ही नहीं चले गए थे मून पर, क्योंकि एयर नहीं है तो एयर भी होनी चाहिए, स्पेशल ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो पता चला वहाँ हवा में उड़ने लगे। तो ये सारी चीजें जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप। आज हम मून की इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी हमें पढ़ना है फेजेस ऑफ मून। मून के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्रेटर्स के बारे में जानेंगे। पर आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मून। ओके, थैंक यू।